Hello friends, today we will see solid state part 4. In before few lectures we will see different types of solid cell, different types of different types of cells, what are the different types of solids. All these we have to studied in last few lecture. Today we will see the relationship between age length, molar mass and the density of the substance. Now for that we are considering a unit cell having age length A. Okay, this unit cell is having age length A, and if we are determining the volume of this unit cell, it is equals to A cube. Okay, because that is the formula of this to determine the volume. After that we will consider a number of particles. Suppose the mass of one particle is equal to m. If there are n number of particles, then mass of this unit cell is equal to m into n. इसका मास कितना होगा फिर n number of particles and mass of one particle is equal to m, that is equals to m into n. वही अगर उसकी हम लोगों को डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. वी हैव अ मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. thus our equation become density is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell is equal to m into n divided by a cube. This is our equation number 2. Now we will consider the molar mass of a substance. If we will added a specific element in this unit cell, then we can determine the molar mass of that substance. Now that molar mass we have to represent it by the capital M. Molar mass means is equal to mass of one particle into number of particle per mole. Now number of particle is equal to Avogadro's number that we know according to Avogadro law. Thus molar mass of substance is equal to mass of substance into Avogadro number. If we will arrange this equation, then we are getting mass of unit cell is equal to molar mass divided by Avogadro number. If we are putting this value of m in our equation 1, then our equation 1 become capital M into n divided by Avogadro number. If the value of this mass of unit cell we are putting in the formula of density, equation number 2, then our equation will become density is equal to molar mass into n divided by Avogadro number into volume of the unit cell. Now this equation, this is called as the relationship between molar mass of a substance, volume of unit cell or age length and the number of particle and density. Okay, this is the relationship between this. Now on basis of this formula, most of the time in board examination numericals are asked. If we will know any 4 quantity out of 5, then we can determine the 5th quantity from this equation. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमें 4 पता है तो एक हम लोग उसकी जो बची हुई है पूछी हुई है वो निकाल सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, एज लेंथ and density of the substance. After that we will see coordination number. अब coordination number क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमें कोई भी यूनिट से फिलअप करनी है किसी एलिमेंट से या किसी सब्सटेंस से, तो वहाँ पर उसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, और ये जो कुछ भी अरेंजमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग ऑफ अ सब्सटेंस. और ये पैकिंग के लिए जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती हैं, तो एक लैटिस पार्टिकल कितने पार्टिकल्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर एक पार्टिकल ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ उसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है तो वो जो सब्सटेंस है, वो जो क्रिस्टल लैटिस है, वो क्या होगा, वो टाइटली पैक्ड होगा और उसका हार्डनेस भी वहाँ पर ज़्यादा होगा. वही अगर कम शेयर कर रहा है वो लूजली पैक होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और नेचर भी उसका सॉफ्ट होगा. Thus to measure the hardness of the crystal,
this coordination number is too much useful. Now we will see packing of particle in crystal lattice. अब जो कुछ भी constituent particles हमने यहाँ पर लिए हुए हैं उसकी जो अरेंजमेंट होती है that is called as the packing of particles. अब ये जो पार्टिकल हैं that every particle is considered as a hard sphere. एक स्पीयर करके हम लोग उसे कंसिडर करते हैं. अब अरेंजमेंट कैसी होती है? इन दैट फर्स्ट वी विल सी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. अब क्या होगा इसमें क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में कि पूरे हमारे जो स्पीयर पार्टिकल्स हैं दैट आर अरेंज्ड इन वन रो, वो एक रो में हमने यहाँ पर अरेंज किए हैं. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ओनली इट इज इन वन एक्सिस, देयरफॉर दे फॉर्मिंग अ रो. इसलिए एक एक्सिस में होने की वजह से उसने क्या किया है? एक रो में पूरे वो अरेंज हुए हैं. और एक स्पीयर जो होता है इसका, एक स्पीयर ने कितने स्पीयर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर की हुई है? बाजू वाले दो स्पीयर के साथ, ठीक है, या दो पार्टिकल के साथ उसने अपनी बाउंड्री यहाँ पर शेयर की हुई है. इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया है यहाँ पर? इट इज इक्वल्स टू 2. वो बन गया यहाँ पर 2. वैसे ही सेम हम लोग देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. अब 2 डायमेंशन मीन्स क्या होगा? ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस हमें यहाँ पर कंसिडर करने हैं. अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल्स या स्पीयर्स हम लोग यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं तो जिस वे से वो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग्स आर देयर. एक है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग. यहाँ पर हमने उसी को नाम दिया हुआ है ए टाइप अरेंजमेंट. अब इस यहाँ पर ये क्या शो करता है कि जो कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, ऑल दीज आर ऑफ सेम टाइप. ठीक है, वो कैसे? सभी एक टाइप के होते हैं. अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा? ये डायग्रामेटिकली आप लोग देखते हैं अभी कि यहाँ पर क्या किया है हमने कि जैसा हमारा एक रो है जस्ट उसी के नीचे यहाँ पर हमने दूसरा रो फिट किया हुआ है, फिर उसी के नीचे तीसरा. इस वे से हम लोग अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक के नीचे एक वो एक जैसा बन जाता है. इसलिए उसका टाइप जो है उसको हमने कहा है ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. वही सेम अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें डिटरमाइन करना है तो एक ही स्पीयर हमने कंसिडर किया. इस स्पीयर की बाउंड्रीज टोटल 4 बाजू वाले जो स्पीयर्स होते हैं उसमें यहाँ पर कवर की हुई है, शेयर की हुई है. कोई भी स्पीयर आप ले लो तो सभी स्पीयर ऐसे 4 यहाँ पर दूसरे जो साइड वाले पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है. दैट्स वाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन गया? यहाँ पर 4 बन गया. अब एक हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 4 स्पीयर शेयरिंग वाला. अगर उनके सेंटर्स लेकर हम लोग यहाँ पर उसकी लाइन ज्वाइन करते हैं तो हमें शेप कौन सा मिल रहा है? यहाँ पर स्क्वायर शेप मिल रहा है. दैट्स वाई दिस पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. और इसमें अवेलेबल स्पेस जो होती हैं दैट इज 52.4% ऑक्यूपाई उसने की हुई है. बाकी की स्पेस जो होती है वो यहाँ पर अलग से होती है. दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग. After that we will see hexagonal close packing. This is the second type. मीन्स जहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर देखा था कि एक के नीचे एक स्पीयर बाकी के आए हुए. अगर यहाँ पर एक लेयर रो जो है, एक लेयर जो है, तो एक लेयर पर दूसरी लेयर फिट करते वक्त अगर हमने उसको स्टैगर्ड कर दिया, थोड़ा सा अगर हमने उसको हिला दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 2 स्पीयर के बीच में जो गैप थी वहाँ पर सेकेंड लेयर शिफ्ट हुई या फिट हुई है. तो यहाँ पर नेचर क्या बन गया? फर्स्ट लेयर का नेचर अलग है, सेकेंड लेयर का नेचर अलग है. इसलिए हमने फर्स्ट लेयर को कहा है ए लेयर और सेकेंड लेयर को कहा है बी लेयर. उसके बाद फिर जब थर्ड लेयर आती है, दिस थर्ड लेयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए लेयर. मीन्स फर्स्ट लेयर जो थी हमारी,
इसलिए ये टाइप की जो कुछ भी अरेंजमेंट यहाँ पर बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब यहाँ पर एक स्फीयर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसकी बाउंड्रीज जो है वो बाकी के 6 स्फीयर्स के साथ यहाँ पर शेयर हुई है। दैट्स वाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया यहाँ पर? 6 बन गया। अब ये जो 6 स्फीयर्स हैं उनके अगर कॉर्नर्स हम लोग, उसके सेंटर्स जो है वो अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर कौन सा बन गया? ये हेक्सागोन। कौन सा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर? हेक्सागोन बना हुआ है। दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और उसमें कितना स्पेस ऑक्युपाई होता है? इट इज 60.4% अवेलेबल स्पेस यहाँ पर होता है। ओके, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट हो गया स्क्वेयर पैकिंग ऑफ स्क्वेयर पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हमें उसे कंसिडर करना है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि 3 डायमेंशन अगर कंसिडर करने हैं तो हम लोग उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमने स्क्वायर पैकिंग में देखा था, उसी तरीके से अगर हम लोग स्फीयर्स की अरेंजमेंट करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ऐसे दोनों इससे अगर हम लोग उसको चेक करते हैं या फिर अरेंज करते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, मीन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिला हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर हमें उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि एक इसका स्फीयर है तो वो शेयर हो रहा है हमारे बाकी के 4 स्फीयर से। आफ्टर दैट एक ऊपर पीछे वाला, एक आगे वाला, ऐसे टोटल 6 स्फीयर्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दैट्स वाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड इफ वी जॉइन द सेंटर्स ऑफ दिस ऑल स्ट्रक्चर्स, in that case we are getting a cubic structure. That's why this is called as a cubic structure. Then each sphere is in contact with 4 sphere in the layer, one above and one below the layer. In that we will see AB type of 3-dimensional packing. जैसे हमने यहाँ पर देखा था, this is our AAA type of packing. All spheres are of same type. Now here we will see there are 2 different layers. First one is A, second one is B. Means second layer जो थी हमारी उसको हमने क्या कर दिया था? स्टैगर्ड कर दिया था। तो इसमें भी हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के वॉइड्स यहाँ पर मिलते हैं। वॉइड मीन इनके बीच में जो कुछ भी स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज द वॉइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? वॉइड कहते हैं। तो हमारी ए लेयर यहाँ पर हमने कंसिडर की हुई है, उसके नीचे हमने बी लेयर रखी हुई है। ठीक है, जो डिप्रेशंस थे ए लेयर के उसके बीच में यहाँ पर बी लेयर फिट हुई है। अब ये जो बी लेयर ए लेयर के बीच में फिट हो रही है, इसकी वजह से हमें 2 वॉइड्स यहाँ पर मिलते हैं। फर्स्ट वी विल सी द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड जब हमें मिलता है, जो गैप थी ए लेयर के बीच में उसके भी गैप में बी लेयर जाकर, बी स्फीयर जाकर फिक्स हो रहा है। अब ये जो कुछ भी शेयरिंग इसमें हमें दिखता है तो फर्स्ट लेयर का एक स्फीयर और सेकेंड लेयर का एक स्फीयर, ऐसे जब शेयरिंग हो रहा है तो सेकेंड लेयर्स क्या करेगी? यहाँ पर ट्रायंगुलर ओपन स्पेस यहाँ पर हमें ऑब्टेंड होगा एंड इसकी वजह से हमें जो कुछ भी स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज हैविंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड, और ओपन स्पेस भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैविंग टेट्राहेड्रल वॉइड। वही सेम अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? अगेन लेयर आर सेम, ए लेयर और बी लेयर ही है हमारे पास, बट यहाँ पर हमने क्या किया है? जैसे फर्स्ट इसमें हमने एक के ऊपर एक लिए थे, इन द सिमिलर मैनर वी आर सीन हियर अ स्टैगर्ड फ्रॉम। ठीक
ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है। तो जो कुछ भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीन कलर वाले जो हैं दैट इज ऑफ टाइप ए, और जो ब्लू कलर वाले हैं वो कौन से हैं, दैट इज ऑफ टाइप बी। तो इनके बीच में जो भी स्पेस यहाँ पर फॉर्म हो रही है ए और बी के बीच में, अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो आपको ब्लू कलर के बीच में भी एक ऑक्टाहेड्रल स्पेस यहाँ पर दिखेगा, और ग्रीन कलर के बीच में भी आपको सेम वैसे ही स्पेस यहाँ पर दिखता है। और ये कब होता है, जब ए लेयर के 3 स्पीयर्स कंबाइन होते हैं बी लेयर के 6 स्पीयर से। ठीक है, उसके साथ अगर वो कंबाइन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो कुछ भी वॉइड हमें मिलता है दैट इज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इस कंडीशन में टोटल पार्टिसिपेशंस कितने आ रहे हैं, टोटल पार्टिसिपेट करने वाले स्पीयर से हमारे पास यहाँ पर 12। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे फॉर्म हो रहा है, 3 स्पीयर्स इन द फर्स्ट लेयर, 3 स्पीयर्स इन द सेकेंड लेयर। This happen when 3 spheres of second layer covers the triangular open space of the first layer. Due to this, the remaining half the number of triangular open spaces of first layer are covered. उसकी वजह से हमें ऑक्टाहेड्रन यहाँ पर फॉर्म होता है। This is the about the tetrahedral void and octahedral void. अब इसके ऊपर अगर हमें थर्ड लेयर फिर से रखनी है, जैसे ए बी हमने देख लिया, उसी के ऊपर अगर हमें यहाँ पर फिर से ए लेयर रखनी है तो वो थर्ड लेयर यहाँ पर अलाइन जो होती है वो फर्स्ट लेयर से फिर से सिमिलर होती है। और इसी की वजह से हमें जो कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर HCP। अब थर्ड टाइप हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। अब तक हमने सिर्फ 2 ही लेयर्स देखी थी, ए लेयर और बी लेयर। अब हमें नेक्स्ट देखना है तीनों लेयर, जो ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर, 3 ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हमने यहाँ पर फिक्स किए। जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पर हमें क्या होता था, ए लेयर फिर बी लेयर और फिर से ए लेयर, मीन्स फर्स्ट लेयर के जैसी ही हमारी थर्ड लेयर होती थी। बट यहाँ पर क्या होगा कि ए लेयर डिफरेंट है, सेकेंड लेवल डिफरेंट है, थर्ड लेवल डिफरेंट है, और जो फोर्थ लेवल होगी, फोर्थ लेयर होगी दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। इसलिए जो कुछ हमें मिलता है दैट इज द टाइप ऑफ ए बी सी टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न। अब इसमें किया क्या है इन्होंने कि जैसे ये स्पीयर्स हैं, द स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर are placed in octahedral voids. Then arrangement of third layer is different from that of the first and second layer. मीन्स यहाँ क्या हुआ, ये हमने सबसे पहले ए लेयर ली है, इसके बीच में जो गैप थी ए लेयर के बीच के स्पीयर के बीच में, उसमें हमने बी वाला फिक्स किया, और बी वाला की स्पीयर्स के बीच में जो गैप थी उसमें हमने सी वाला प्लेस किया। बट ये जो सी की अरेंजमेंट है दैट इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द ए, फिर से उसको हमने स्टैगर्ड करके उसको फिट किया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है। अब अगर सपोज इस तीनों लेयर के ऊपर चौथी लेयर हम लोग रखते हैं दैट इज द सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब इसके सेंटर्स अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स एक स्पीयर जो है वो एक स्पीयर शेयर कर रहा है टोटल 12 स्पीयर। ठीक है, 3 डायमेंशन में हमें देखना है, तो 3 डायमेंशन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे 12 पेयर्स जो होते हैं उसका शेयरिंग वहाँ पर होगा। अब ये 12 कहाँ से आते हैं, तो 6 जो लेयर स्पीयर्स हैं वो आजू बाजू वाले, सेम उसी लेयर के आजू बाजू वाले जो है वो 6, देन नीचे के लेयर के 3 और ऊपर वाली जो लेयर होते हैं उसके 3, ऐसे 6 + 3 + 3, ऐसे टोटल स्पीयर्स कितने हो गए कंट्रीब्यूशन में हमारे, इसमें 12 स्पीयर्स हो गए। और ये जो 12 स्पीयर्स हैं उन 12 स्पीयर्स को हम लोग का उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाएगा, फिर इट इज इक्वल्स टू 12। ओके, ये भी बन गया हमारा 12।
और अगर उसके स्पीयर के सेंटर्स अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, जैसा हमने 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशन में देखा था, तो अगर हम लोग उसके सेंटर्स ज्वाइन करते हैं तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट इज़ अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। वो कौन सा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा यहाँ पर? क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलेगा, और इसीलिए उसको हम लोग देखते हैं CCP स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया था, 3 डायमेंशन में हमने 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखे। एक में हमने देखा कि पूरे पार्टिकल्स थे, जो पूरे स्पीयर्स जो थे हमारे वो एक जैसे थे और एक के ऊपर एक वो पूरे अलाइन हुए थे, इसलिए हमें टाइप मिला था ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग। वही सेम सेकेंड इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ हमारी बी लेयर जो थी उसको हमने चेंज किया था, तो हमें वहाँ पर मिला था ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और थर्ड टाइप में क्या हुआ यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप से हमने अरेंज उसको किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर मिलेगा ABC टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग।